Hi, friends. A very good evening to all of you and a warm welcome on madhuisluxury.co. Today, there's going to be a lot of positivity, a lot of motivation. And as you know, that I've started with part two. Luxury meets Padma Shri Kailash Kher today, spiritual Sufi singer, lyricist, and music composer. So let's not. I think I would just like to invite him because we are all very, very eagerly looking forward to it. So let's welcome Kailash Kher ji. जी, नमस्कार, hello everyone. Good evening, Yes, Kailash ji. good And a evening. warm welcome. It's a real pleasure and honor for me to host you on this show today. Hi, Anu. Thank Anu saying good evening and good to see you. So, Kailashji, I think you need no introduction, but still, to just tell the audience, I would like to inform you that Kailashji is one of the youngest musicians to be the recipient of Padma Shri, and he. One second. Actually, I think I over prepared today, so probably that's why this is happening. One second, please. I'm so sorry. जी, कोई नहीं। सुनीता जी भी ज्वाइन कर चुकी, सुनीता धर, Yeah, अनु जी। yeah. Hi, Sunita. So the journey of this remarkable Sufi and spiritual singer is not more than 15 years. In this short span, he has sung more than 1500 plus film songs. He has sung in more than 20 plus languages, and he has almost won all the prestigious for film awards. So it's a real honor for us for him to be here on the show today. So before we start with the show, Kailash, I would really request you if we could start with the small prayer, a motivational prayer for everybody at this time of pandemic. जी, so I will start with the Adi Yogi and भगवान मेरे भोलेनाथ का नाम लेकर हम लोग प्रारंभ करते हैं लोगों से बात करना। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। Beautiful. Lot of people are commenting. Beautiful voice, soulful voice, undoubtedly. It's such a pleasure to hear you and having you here with us. So, Kailashi, I would like to first ask you कि आपकी रेसिपी क्या है सक्सेस की, वो हम सब जानना चाहते हैं। इतनी यंग एज में आपको पद्मश्री मिला और इतनी जल्दी आपको इतना कुछ फेम नेम मिला, उसकी सक्सेस की रेसिपी एंड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन फिल्म म्यूजिक टू पद्मा अवार्डी, your journey. We all would love to know your journey, Kailashji. My journey began in 2002, and I come from a very modest, humbled background, but due to my own passion for music and for the way I live, many hurdles I chose for my life. And in my very formative years only, I had seen quite tough path to survive. And because of that, uh, God gave me, so much natural learning. Because when you go through tough time, then sometimes tough goes through you only, so you become more tougher. So Right. because of that, आपके अंदर सबसे अच्छा एक बदलाव आता है जब आप मुश्किलों से गुजर जाते हैं, तो आप आसानियों को समझने लगते हैं। यानी इतनी भी बड़ी चट्टान से टकराती है नदी, लेकिन नदी का बहाव जो है वो सबको तैराता रहता है।
कितनी भी बड़ी चट्टान से। तो ऐसा ही जीवन हम लोगों को मिला, और बिकॉज ऐसी जिंदगी मिली कि जिसमें मुश्किलें थोड़ी ज्यादा थी, और उसकी वजह से जब जो जो मुझे प्राप्त होता गया उसकी वैल्यू मैं करता गया शायद, इसलिए बहुत कम आयु में बहुत अधिक प्राप्त किया मैंने। और मैं इसके लिए परमात्मा को नमन करता हूँ, मेरी जर्नी में जितने भी लोग आए उनको नमन करता हूँ, मेरे पेरेंट्स को नमन है ही, और एवरीवन हु एक्चुअली क्रॉस माय पाथ। ब्यूटिफुल, वेरी वेरी मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग, आई मस्ट से कैलाश जी। और एक आपने जो ये बोला कि चट्टानों का सामना किया हुआ है आपने पहले, और अभी जो है वो भी हमें कोई कम चट्टान से नहीं लग रहा जो पैंडेमिक चल रहा है। और आई थिंक आपसे सीखने वाली बात है कि कोई भी चट्टान आ जाए उसको पास पास करना, क्रॉस करना, वो हमें हिम्मत रखनी चाहिए उस चीज की, एंड वो हमें और स्ट्रांग बनाता है, जैसा कि आपने अभी बोला। तो बहुत ही मोटिवेटिंग बात है। जी माधवी, मुझे लगता है जैसे ये वाला समय है जिसको हम कोविड फेज बोल रहे हैं, तो ऐसा भारत के ऊपर बहुत बार आया है मुश्किलों का टाइम, जिसमें कितनी सारी आपदाओं से भारतवासियों ने निकलने की बहुत अच्छे से विजय प्राप्त की और जीत की तरफ बढ़े। कितनी बार ऐसे महामारियां आई, कितनी बार ऐसे पैंडेमिक, कितनी बार ऐसे एपिडेमिक, कितनी बार ऐसे कैलामिटीज आए। और भारत में क्या है कि भारत में अभी भी लोग थोड़े भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं, और जिनकी वजह से, जज्बाती होने की वजह से हम लोगों में अभी भी एक दूसरे के प्रति ये फीलिंग है कि नहीं यार वो मुश्किलों में है तो चलो उनकी हेल्प कर देते हैं। पूरा भारत अभी निकला हुआ है जैसे एक परिवार में मुश्किल आ गई हो, और उस परिवार की मुश्किलों को परिवार वाले ही संभाल रहे हैं मिलकर। तो भारत की स्ट्रेंथ होती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर वो हिम्मत बढ़ाते हैं। न केवल देखिए इस वक्त कोविड की तो प्रॉब्लम है ही, जहां पर हेल्थ स्ट्रक्चर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे देश में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं। हमारी भी एक संस्था है जो लोगों के रोजगार नहीं है, जो लोग रोज काम करते थे, रोज खाते थे, रोज कमाते थे, उनके काम ठप हो गए हैं। तो कैलाश केयर फाउंडेशन उसमें लगी हुई है। ऐसी न जाने कितनी फाउंडेशन, कितने लोग इंडिविजुअल, कितने लोग वॉलंटियर। तो इसी तरह से मिलकर ही देश में थोड़ा सा कष्टों को निवारण हो सकता है। जब एक दूसरे के साथ हम आते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। अब हम लोग राशन बांट रहे हैं, और राजस्थान में बांट रहे हैं, उत्तराखंड में बांट रहे हैं, इसके लिए अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो बीमार है उसका तो चलिए दवा इलाज कर देगी, लेकिन जो बीमार जैसी स्थिति पे है उसका तो दुआ और उसके साथ लोगों की जो हेल्प होती है, मदद, वही हेल्प करती है। Very true. Bilkul, well said. And again, you inspire everyone. You're doing such a noble work with your foundation, and more people should come up. Already, I'm surprised to see immensely people are coming up in innumerable ways and helping and reaching out to people at this time, which is really wonderful. And definitely, Indian people are very, very emotional. And India ने हरदम अपनी जीत करी है जब भी ऐसी कुछ आपदा उनके ऊपर आई है. And I'm sure इससे भी हम लोग सब बाहर निकलेंगे बहुत जल्दी. And it's a global pandemic now. It's not limited only to India. So अब तो मेरे को लगता है कि पूरा वर्ल्ड इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ आ रहा है और एक दूसरे को रीच आउट कर रहा है, हेल्प कर रहा है. आई वुड लाइक टू आस्क यू कैलाश जी कि हमने बहुत सुना है आपके इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू म्यूजिक, जैसे कि आपकी नई उड़ान फॉर गिविंग टैलेंट अ प्लेटफॉर्म एंड मेहर रंगत टू सेव द ओल्ड डाइंग आर्ट ऑफ फोक एंड इंडियन म्यूजिक. कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट? जी, तो माधवी देखिए, जब मैं यहाँ आया था ना, तो यहाँ जब आते हैं लोग मुंबई, भले कहीं से भी आए, तो उनको सिर्फ रहने की समस्या नहीं होती, यहाँ बहुत सारी अलग समस्याएं भी होती हैं जिसको मनुष्य कई बार बताता भी नहीं। ऐसी समस्याएं जो आप बहुत ही इमोशनल या पर्सनल समझ के चुप रह जाते हैं बताने में, लेकिन मैं आपको बताता हूं। यहाँ एक समस्या होती है कि जो पहले से नामचीन कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, या फिल्म में मान लीजिए फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, तो उनसे आपका मन होता है मिलने को, कभी एक झलक पाने को। मान लीजिए क्योंकि देखिए कहते हैं कि जो जुगनू है वो भले सूरज बन नहीं पाएगा, लेकिन चमक तो थोड़ी सी उसमें भी है और उड़ान भी है।
तो हौसले तो सभी में होते हैं, लेकिन जब आप शुरू में यहाँ आते हैं और जिनको आप अपना बहुत आदर्श मानते हैं, आइडल मानते हैं, तो उनसे मिलना भर यहाँ इतना मुश्किल होता है माधवी कि 5-6 साल तो उनसे मिलने के ख्वाबों में लग जाते हैं, जबकि ना तो आप पैसे मांगने जा रहे हैं उनसे, ना उनका कोई कपड़ा मांगने जा रहे हैं, उनकी कोई जायदाद भी आप कुछ नहीं मांगेंगे, बस दर्शक पर आपका, बस आपका लाड़ है उनके प्रति, बिकॉज यू अडोर देम। लेकिन अच्छा, जो भी लोग दूर से आते हैं, मुंबई में बहुत कम पैदा होते हैं लोग जो बहुत सारे नामचीन हैं, बाहर से ही आते हैं। जो बाहर से आते हैं उनके भी अपने हिस्से का तो कुछ तो शुरुआती दौर का मुश्किलें होती होगी, लेकिन जब वो मनुष्य बड़े बन जाते हैं, नाम कमा लेते हैं, तो वो अनअप्रोचेबल हो जाते हैं, नॉन रीचेबल हो जाते हैं। तो मैं ऐसे मन में मेरे उन दिनों आता था कि जब मैं बड़ा बनूं, सपोज मेरी कोई पहचान बन जाए, तो मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। और ऐसा के लिए मैंने क्या किया कि मैंने पहले ही ये तय कर लिया, मेरे कुल 10 वर्ष के करियर में ही, 10 वर्ष के करियर में तो जीवन डगमगाया ही रहता है यहाँ पर, आप भी जानते हैं। 20 साल का तो लोन मिलता है, कोई भी बैंक से जब लोन उठाते हैं आप, तो 20 साल का मिनिमम, भले आप बंगला खरीद लें 100 करोड़ का, और लोन अगर लिया तो 20 साल का मिलता है। तो अभी तो हमें 10 ही हुए थे, फिर भी हमारा पागलपन देखिए, जुनून जो हमारा, वो हम ज्यादा जोड़ने की तरफ कम है, छोड़ने की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जितना आप छोड़ेंगे उतना रिक्त होता है, जितना रिक्त होता है उतना और भरता है। देखिए, जहां आप डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें आप क्या भर देंगे, क्योंकि कच्चे घड़े में पानी ना डटे और ना कागज में पारा, तो आपको खाली होना पड़ता है, आपको छोड़ना पड़ता है, तभी आप भरने का गुंजाइश उसमें रख पाते हैं। तो मेरी ये सोच बड़ी क्लियर है ना, मुझे ऐसा कि ये मुझे सिर्फ ये बताने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात करनी है, नहीं, मुझे जिंदगी के थपेड़ों ने जो भी सिखाया है वो यही सिखाया है कि भैया जोड़ना कम, छोड़ना ज्यादा, क्योंकि जितना छोड़ेंगे उतना बाकियों के लिए जगह बनती रहेगी। और इस तरह से मैंने ये नई उड़ान फिर अपना प्रकल्प शुरू किया। नई उड़ान में न केवल हम जो अपकमिंग म्यूजिशियंस हैं, भले कहीं से भी आए हों, कोई भी हों, न केवल उनसे मिलते हैं बल्कि उनको मिलाते हैं, पूरी हुज हु ऑफ दिस इंडस्ट्री, उनको हम इनवाइट करते हैं, उनके लिए फिर ऑडिटोरियम बुक करते हैं नए अपने म्यूजिशियंस के लिए, और उनको बैठे हुए जब दिखते हैं बड़े बड़े नामचीन लोग, तो उनके लिए वो बड़ा पल हो जाता है। और ये मेरा जुनून था कि मुझे ऐसा करना है, जो मुझे कभी नहीं मिला वो मुझे बांटना है। मुझे जैसे कभी मान लीजिए खाने पर बहुत लोगों ने नहीं बुलाया, डिनर विनर पे, अब बहुत बुलाते हैं, तो मैं ज्यादातर लोगों को ऐसा चाहता हूं कि उनके अंदर वो पहले से एहसास रहे कि यस, वी आर ऑल्सो अमंगस्ट दोज इवॉल्व्ड पीपल जिनका रिस्पेक्ट है समाज में, सोसाइटी में। तो मैं ऐसे वाली दुनिया कायम करना चाहता हूं, जिसका ये शुरुआत हो गई है। कभी गायक ने कोई गायक लॉन्च किए नहीं थे, जब हमने किया तो पहली बार पहले वर्ष में हमने बुलाया था जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी जी, तो उन्होंने कहा स्टेज पे आकर कि मैं पहली बार देख रहा हूं अपने पूरे करियर में कि कोई पागल आदमी ही ये काम कर सकता है कि कोई अपना कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहा हो खुद। लेकिन उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये दुनिया पागलों से ही जानी गई है, तो ऐसे चाहिए। तो ये तो हुआ नई उड़ान जो हम हर वर्ष अपने जन्मदिन पर करते हैं। दूसरा हम करते हैं, अपने पिताजी की पुण्यतिथि है 21 नवंबर। 21 नवंबर 2008 को मेरे पिताजी प्रयाण कर गए थे, ब्रह्मलीन हो गए थे, तो उनकी याद में ये करते हैं। मेहर, पंडित मेहर खेर उनका नाम था, मेहर सिंह खेर, तो उनके नाम पर हम एक फेस्टिवल करते हैं, मेहर रंगत। उसमें मैं फोक म्यूजिशियंस यानी लोक संगीत और लोक गायक जितने भी हैं, लोक वाद्य भी जितने हैं, उनको बनाने वाले, बजाने वाले, उनके नाम ये फेस्टिवल है। जिनको कभी बड़ा मंच नहीं मिलता, बड़ी जगहें नहीं मिलती, बड़ा नाम नहीं मिलता, उनके लिए हमने ये बड़ा स्टेज क्रिएट किया है, मेहर रंगत। यानी मेहर मतलब, अगर आप शाब्दिक अर्थ भी देखें, मेहर मतलब ब्लेसिंग, जैसे गुरु मेहर करे, तो वो मेहरबानी, तो वो वाला देखिए, एक मेहर
और मेहरबानी की रंगत, यानी ब्लेसिंग की रंगत। ब्लेसिंग से आप न केवल खुश खुद होते हैं बल्कि खुशियां फैलाते हैं फिर आप। तो मेहर रंगत फेस्टिवल उसी की उपज है। मेरे पिताजी की याद में मैं करता हूं, और उनको जो एक तरह से डिजेक्टेड हैं या डिप्राइव्ड हैं, जिनको कभी बड़े स्टेज नहीं मिलते, बड़ा नाम नहीं मिलता, उनके लिए ये स्टेज हमने बनाया है मेहर रंगत। और इसमें हम फोक म्यूजिक, जो धीरे धीरे कुछ वाद्य विलुप्त होते जा रहे हैं, हम उनके बचाने की मुहिम इसमें छेड़े हुए हैं। हम मतलब हम अपना पैसा लगा लगा के और सारे म्यूजिशियंस को बुलाते हैं। 30-30 म्यूजिशियंस कभी कभी होते हैं, और वो बड़ा स्टेज भव्य, मतलब हमारे करने का ढंग भी ऐसा जैसे कोई राजा कर रहा हो, जैसे भाई आज है, अगला अगला दिन बचेगा ही नहीं। फकीर की आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। Nice, very, very inspiring. Every word you're speaking is inspiring, actually. And I don't know how much we can take today from you, because there's so much to you. And आपका passion देखे, आपकी humbleness देखे, या आपकी such a noble thing that you're doing. I don't know what all to learn from you. There's so much, actually. And a lot of comments are coming. People are saying you are a true singer, you are a true artist, and I think there are many of them. Somebody, yeah, actually somebody. some of those I am also reading, so it's very inspiring and encouraging. And God bless you all. नेहा गर्ग ने लिखा है, you were who was your inspiration in your early life? early life, okay, yeah. नेहा नमस्कार। मेरे अर्ली लाइफ की इंस्पिरेशन, आप हंसेंगी, मैं रहा हूँ आश्रमों में। मैं घर छोड़ के भाग गया था और बाद में थोड़ा मुश्किलों में रहा, लेकिन बाद में चीजें संभली तो फिर एक आश्रम में रहने लगा। मैं वहाँ पला बड़ा, मेरी एजुकेशन भी एक आश्रम के ही, गुरुकुल के ही विश्वविद्यालय में हुई है। तो मैं क्योंकि स्पिरिचुअल सोल्स के इधर इर्द गिर्द बहुत रहा, और जबकि टफ टाइम मैंने बहुत देखा। टफ टाइम का मतलब होता है कि मैं बुरा बन सकता था, मैं बुरे राह पे जा सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द संगत ऑफ दोज सेंट्स अराउंड, तो उनकी सराउंडिंग से मैं बिगड़ा नहीं, मैं बस ठीक रहा और बैलेंस रहा। और जैसे कहते हैं ना, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी जहर वहां नहीं चढ़ता। तो मैं भी इस तरह से, मेरी इंस्पिरेशन शायद वही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था जिसकी वजह से कटुता मेरे अंदर नहीं आई, वरना कड़वे तजर्बे बहुत हुए। लोगों ने ह्यूमिलिएट किया हमें, लोगों ने उपहास हमारा उड़ाया, मजाक उड़ाया, लोगों ने हमको सीरियसली कभी लिया नहीं। हमारी आवाज की मजाक उड़ती थी, हमारे म्यूजिक की मजाक उड़ती थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से आप कॉम्प्लेक्स्ड हो सकते थे, आप इंफीरियरिटी आपके अंदर आ सकती थी, आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते थे, आप गुस्सा करना सीख सकते थे। लेकिन परमात्मा ने हमको ठंडा रखा, वो शीतल रखा, बिकॉज ऑफ माय सराउंडिंग। Yeah, so I think it's like as the company, so is the color, because you were with so many spiritual people. So उनका कहीं ना कहीं रंग आता है, रंगत का. And a lot of people are again commenting. Shreya wants to know that who's the inspiration for Lord Shiva? Why you chose music, sir? And what is your feelings for Lord Shiva? भगवान जो questions I can see. जी जी, मैं बताना चाहिए किनका क्वेश्चन है? श्रेया। श्रेया, हाँ श्रेया, आपको बहुत नमस्कार है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आल्सो यू आस्क्ड। क्या होता है इस दुनिया में, शिव एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी इमेज, एक ऐसी विभूति परमात्मा की बनी हुई है हम लोगों के लिए, कि जो अजर हैं, अमर हैं, शून्य हैं, शिखर हैं, पुरातन हैं, सनातन हैं। हे मेरे दाता, अरूप में स्वरूप में शिव ही शिव हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आप महसूस तब करते हैं कि जब आपके निकट दुख आता हो, क्योंकि मैं दुखों से बना हूं, मैं मुश्किलों से बना हूं, मैं मुसीबतों से आगे आया हूं। और कहते हैं कि तुमने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से सीखा है। तो मेरे लिए शिव जो हैं वो सबसे बड़े इसलिए मेरे आराध्य बने, क्योंकि वही हैं जो बनाते भी हैं और बनाकर फिर से मिटाते भी हैं, फिर बनाते हैं। मतलब वही सर्जनहारा भी हैं और वही फिर से विध्वंस भी कर देते हैं।
तो क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, यस, वो अनंत हैं एक्चुअली। अब उनके रूप के अलावा मुझे कुछ ऐसा दिखता भी नहीं है, मैं तो प्रकृति को भी उन्हीं का रूप मानता हूं, और इसलिए मैं क्योंकि बाल्यावस्था से उनको ही भजता आया हूं, और मेरे मन में ये था कि हे मेरे ईश्वर, जब मैं एक बार ऋषिकेश में गंगा आरती से पहले गाता था, मैं वहां पे कर्मकांड सीखने गया था, तो मैं वहां का स्टूडेंट था। तो जब मैं वहां गाता था तो जितने शिव उपासक हैं, जितने शिव आराधक हैं, जो हमारी नजरों में साधु संत होते हैं, और वो भी वो वाले साधु संत जो गुफाओं में रहने के बाद सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, यानी ऋषिकेश की तरफ आते हैं, गंगा घाट को धूप सेकने लगते हैं, वहीं रहते हैं घाटों के पास ही। तो जब वो नाचते थे हमारे गानों पे, और वो दुशाला खोल खोल के नाचते थे, वर्लिंग करते, तो उनका जो साधारण सच्चा वर्लिंग होता था, मेरे हृदय में तभी आया था ये कि भगवान, जब भी मैं आपका सुमरन करता हूं तो ये लोग नाचते हैं, और मैं इनको, ये मेरे फेवरेट हैं, मैं इनको अपना, मतलब आई एम देयर फैंस, जबकि इनको पता भी नहीं, तो उन साथियों को, उनको पता भी नहीं कि मैं उनका फैन हूं तो फिर भी वो भी नाच रहे हैं। तो मेरे मन में तब ये एक कॉन्फिडेंस आता था, माधवी और श्रेया, कि शायद इस तरह के जो लोग हैं, जो इतने एलिवेटेड स्टेज पे आ चुके हैं लाइफ के, कि यदि वो नाच सकते हैं मेरे म्यूजिक पे, तो शायद मेरे ईश्वर ने, मेरे शिव ने कुछ ऐसी दुनिया बनाई है जो इस तरह के म्यूजिक से भी थोड़े लाभान्वित होंगे। अच्छा, बहुत दुनिया के लोगों ने म्यूजिक को एंटरटेनमेंट तक माना है, मैं बोलता हूं म्यूजिक कैन नॉट एंटरटेन एवर, म्यूजिक कैन ओनली एंटर, अटेन एज वेल एज एनलाइटन। Lovely, beautiful, and that's what it's been doing. I think now, especially with you, with your voice and your songs, it's exactly doing that, enlightening and entertaining all of us. And now again, I think Neha is saying कि आपकी simplicity को naman. Undoubtedly, it's so nice to know your story in your own words, and so honest you're about telling the hardships that you've gone through, and it's not all a goody goody rosy picture that you are showing us. So it's really nice to know the other side of the glamour industry right from you in your own words. Vicky Anand is saying hi. There are many more questions actually people are putting up. So Richard's asking, how has pandemic affected music industry? म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे इफेक्ट किया है पैंडेमिक ने? जी, पैंडेमिक ने एक्चुअली अगर कुछ इफेक्ट किया है किसी के रोजगार पे, किसी के व्यापार पे, किसी के कारोबार पे, तो सबसे ज्यादा वो आर्टिस्टों पर। क्यों? क्योंकि वो रोज कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट करते थे। देखिए, हैंडफुल हैं जो नामचीन आर्टिस्ट हैं भारत में, वो 10 या 20 होंगे बस, जिनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है, बड़ी फीस होती है, बड़ा क्राउड होता है। लेकिन भारत में लाखों आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, खाते हैं सिर्फ गाकर, परफॉर्म कर, और उनका दे आर नॉट इवन लिस्टेड और रजिस्टर्ड इन एनी कैटेगरी ऑल्सो। जैसे लेबरर्स एक जगह कैटेगरी किसी में रजिस्टर्ड है, भारत का आज तक कोई आर्टिस्ट, अभी तक एसोसिएशंस हैं लेकिन गवर्नमेंट के पास उनका कोई डेटा अभी रजिस्टर्ड ऐसे नहीं है कि यार इनको भी हम लोग एटलीस्ट, जब तक कुछ मुश्किलें हैं तब तक 2000 पर मंथ या 3000 पर मंथ के हिसाब से किसी को दे दें। गवर्नमेंट भी अभी कुछ नहीं। तो ऐसे में जो जितनी भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर एक्चुअली कमिंग। जैसे अब कैलाश खेर फाउंडेशन, अब हम राजस्थान के लोक कलाकारों के लिए 1 ट्रक भर के राशन भिजवा रहे हैं। और देखिए 1 ट्रक भी कम है, क्योंकि लाखों की संख्या में 1.5 लाख परिवार हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर और अपने नागौर, अपने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, इन इलाकों के दूर दराज गांवों की तरफ जी 1.5 लाख परिवार हैं। अब 1.5 लाख परिवारों को आप अगर 3-3 महीने का राशन भी देंगे तो 1 ट्रक से तो काम होगा नहीं। तो ऐसे जितना हो सक रहा है हम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे और भी कर रही हैं संस्थाएं, तो हम और संस्थाओं को भी बता रहे हैं कि कृपया इस वक्त दान जरूर दो,
और दिल से दो, क्योंकि दान देना इसलिए बहुत अच्छा होता है कि जैसे ही आप खाली करते हैं तो परमात्मा फिर से भरता है। यदि आप भरे भरे रखेंगे तो फिर पता लगा गुम भी जाएगा आपका और चोरी भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगता। जिनके पास बहुतायत है, आई ऑलवेज ऑब्जर्व माई ओन लाइफ। कभी कभी हम लोगों के गिफ्ट्स आते हैं बहुत सारे, वो गिफ्ट रखे रह जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता हमको खोलने तलक को। फिर कभी समय मिला, मान लीजिए हमारे स्टाफ ने खोल के दिखाया कि साहब ये आया पड़ा था बहुत दिन से, इसमें ये है उसमें वो है। जब ये देखते हैं तो हम हंसते हैं, अरे ये फला ने दिया था, ओ हो। तो हमें ऐसा, जिंदगी भी एक गिफ्ट है, परमात्मा भी हम सबको गिफ्ट देते हैं। किसी को पैसा भी देते हैं, किसी को मान लीजिए वस्तुएं दे देते हैं, किसी को बहुत सारी साधन दे देते हैं, लेकिन सब प्रयोग ना करें, उसको जोड़ जोड़ के सिर्फ रखें, वो फायदा कुछ है नहीं। प्रयोग करो, भोगो, अच्छी चीजें खाओ, अपनी सेहत बनाओ, अच्छा भोजन खाओ, अच्छा वस्त्र पहनो, लेकिन यदि आपके पास एक्स्ट्रा हो तो वो किसी और के काम में लाओ, भले अपने स्टाफ के ही काम में लाओ, भले स्टाफ की कोई परिचित या कोई रिलेटिव्स को, उनको थोड़ा हेल्प करो। देखिए ईच वन हमारा ये नारा है। यदि आप पढ़ लिख जाएं तो किसी एक को अपने जैसा बना दीजिए, आप यदि छक जाएं तो किसी एक को छकाइए। यदि ऐसे ही चलता रहा तो इट कैन क्रिएट अ चेन, और ये श्रृंखला फिर मरी को भी मिटा देगी, ये लाचारी को भी मिटा देगी, ये महामारी को भी मिटा देगी। बस हमें बदलना है, ईच वन टीच वन, ये मेरा नारा। वंडरफुल, ग्रेट मैसेज आई मस्ट से, एंड यू आर एक्चुअली राइट कि जो भी हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं उसकी हमें जरूरत नहीं होती है, हम लोग एक्स्ट्रा 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 करते जाते हैं। स्पेशली अभी पैंडेमिक में तो सबको रियलाइज हो गया है कि कुछ भी नहीं जरूरत है एक अच्छी लाइफ के लिए। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट एंड बीइंग विद योर क्लोज वंस, बाकी सब हम एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट कर रहे हैं लाइफ में। एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जितना हम देंगे उतना हमें वापस फिल हो जाता है, वो जितना भी जाता है वो वापस आ जाता है। तो जब तक हम देंगे नहीं वो आएगा भी नहीं। अब मैं आपको हेल्थ और अपनों के साथ रहने का बहुत बड़ा ये बताता हूँ। देखिए कैलाश जी, हु इज योर रूटीन, व्हाट इज योर रूटीन ड्यूरिंग कोविड कोरोना? हाँ, देखिए मेरा यही रूटीन है कि कोरोना के दरमियान हम लोग बहुत सारा वीडियोस पे रहते हैं, वर्चुअल सेशंस में रहते हैं, मोटिवेशनल बातें हमको बहुत लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, और थोड़ा थोड़ा गा के भी हम बताते हैं तो लोगों को, तो मतलब इनफैक्ट कोरोना में हम ज्यादा बिजी हैं, लेकिन पैसे नहीं आ रहे बस। अब जो भी बुलाते हैं वो फ्री में बुलाते हैं। तो वो भी ठीक है, कभी घी गने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी उन्हें भी मने। ये टाइम, इट्स टाइम, सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ टाइम। अच्छा, दूसरे में आपको बता रहा था कि हेल्थ और अपनों के पास रहना कितना अनिवार्य है। देखिए आज इस पृथ्वी पर संकट किस चीज का आया है? वायु का, हवा का, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सीजन बोलते हैं। भारत में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में भगवान ने ऑक्सीजन की कोई कभी कमी छोड़ी ही नहीं। फिर भी देखिए कैसे तड़प रहे हैं लोग, कैसे किसी के तो प्राण भी चले गए। क्यों गए? ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को जो अब्जॉर्ब करने वाले कंपोनेंट्स हमारे शरीर के अंदर हैं, अब हमने उनको सिकोड़ लिया। हमारी भावनाएं, हमारी आत्माएं सिकुड़ गई हैं, हमने अपनों के साथ रहना छोड़ दिया। हम सब स्ट्रेस में हैं। देखिए दौलत बेशक सबने कमा ली, लेकिन एक तो हेल्थ बिगाड़ी है सबने, और सब स्ट्रेस में है दौलत पाकर भी। मतलब फिगर आपकी बोलें तो बिलियंस में है, लेकिन आपकी या तो हेल्थ कुछ बिगड़ी हुई है, और या फिर आप हमेशा चिंता में डूबे हैं। भैया ऐसा बोझ किस लिए, ये बैगेज क्यों रख लिया सर पे तूने? फिर दौलत ना हुई, ये तो फिर बैगेज हो गया जिसके नीचे तू मरने को तैयार है। तो ऐसा बनना, उसके लिए ये भगवान ने इशारा दिया है। ये ऑक्सीजन की कोई कमी हो ही नहीं सकती। कमी है प्रेम, कमी है लाड़ की, कमी है वात्सल्य की, अपनों में अपनापन नहीं है। यदि मनुष्य अपनों के बीच में अपना ख्याल रखे और अपनों का ख्याल रखे, आपको बताऊं मैं, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। भारत सिखाता है जीने की शैली। जिनके पास बहुत बड़े बड़े हेल्थ स्ट्रक्चर थे,
जिनके पास बहुत बड़े साधन थे, डेवलप्ड नेशंस जो हैं, जो दुनिया को टेक्नोलॉजीज, दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दुनिया को न जाने क्या क्या मशीनरी और इंटेलिजेंस बांट रहे थे, उनकी भी हालत क्यों पतली हुई? वहां भी देखिए सब कुछ सोना इसीलिए था कि वहां मटीरियलिस्टिकली तो दे आर रिच, लेकिन इमोशनली दे आर एम्प्टी। तो हमें इमोशनली, भारत फिर भी क्यों सरवाइव किया अच्छे से? भारत में इमोशनली अभी भी उतना एम्प्टीनेस नहीं है, अभी भी एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बैठे हैं, खड़े हैं लोग। लेकिन अब धीरे धीरे हम क्योंकि भाग रहे हैं नकली की ओर, तो नकली पने के चक्कर में जो बच्चे हैं वो हमारे माता पिता से अलग रहने लगते हैं, माता पिता यहाँ ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। वैसा नहीं करना, तो माता पिता को भी ऑक्सीजन की कमी है, और वो जो अलग रह के सोच रहे हैं बहुत हमने तरक्की कर ली, हम कैलिफोर्निया में हमने कंडोमिनियम खरीद लिया, ना बेकार है वो सब। अरे भैया तुम खुद ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हो, और ऑक्सीजन क्या है? लाड़। जिन जिन घरों में बड़ों का साया ना हो, और आप दौलत कमाने में सोचें कि मेड्स ही सब काम कर लेंगी, नहीं, मेड्स से सब नहीं होगा। मेड्स कैन नॉट एड फीलिंग्स एंड इमोशंस। वो जो केयर होती है ना अपनों की, वो बड़ी निराली होती है। तो माना कि अपने बोर करेंगे, माना कि अपने शोर करेंगे, लेकिन अपनों का जो लाड़ है, अपनों का जो सच्चा प्रेम है, उसको खोइए है मेरे तरक्की करने वाले लोगों। मैं यही बोलता हूं सबसे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये दौलत, ये शोहरत तो करोड़ों लोगों ने आपसे पहले भी कमाई है, तो वो क्या उन्होंने कर लिया? सब यहीं छोड़ छोड़ के गए हैं। ताजमहल जैसे लोग छोड़ गए, और बड़े बड़े इमारतें, महल सब यहीं छोड़ गए लोग। तो उतना की बजाय अपना सेहत का, प्योर, ईट प्योर, लिव प्योर। देखिए ये अब हमारा एक नारा है कि पहले तो आप खाने का, अपना खाना बिगड़ गया, लोगों का भोजन और लोगों का भजन, ये जब से बिगड़ा है तब से स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। तो लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि इतना भी दौलत के पीछे मत पागल हो जाइए। जैसे सारे काम अभी दौलत लिए घूम रहे थे लोग, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी बेड नहीं मिल रही। इतनों की हमने, कैलाश खेर फाउंडेशन ने कम से कम 40 लोगों की मदद की है, इंडिविजुअलों की इस बार, जिनको बेड्स दिलाए, जिनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घरों में लगवा के आए हम, हमारी टीम। तो देखिए मैंने ये देखा कि दौलत है उनके पास, वो चाहें तो पूरा शहर खरीद लें, चाहें तो हॉस्पिटल खरीद लें, लेकिन एक बेड उनको नहीं मिला। एक बेड नहीं मिला, तो इसका मतलब उनको ये गणित तो समझ आ गया होगा कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। देयर इज सर्कमस्टेंसेस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, सो बेटर वी लिव विद सिनर्जी, जिससे भारत जीता आया है। संयुक्त परिवारों का देश था भारत, और बहुत कुटुंबों का देश था, कुनबों का देश था। तो हमें अपनों का निकटता चाहिए, प्रेम चाहिए। हम प्रेम से खाली हो रहे हैं, इसलिए जो ऑक्सीजन पंपिंग करने वाला एक यंत्र है ना हमारे अंदर लगा हुआ, जिसको हम लंग कहते हैं, फेफड़ा, वो फेफड़े सिकुड़ रहे हैं लोगों की। पहले तो देखिए लाड़ में आपने सुना होगा, हमारे बड़े बोलते हैं अरे ये तो मेरा जिगर जवान है। ये जिगर क्या है? जिगर तो लीवर और किडनी को ही जिगर कहते हैं ना जी। वेरी वेरी नाइस। ये तो दिल है। तो ये क्या था? लोग अपने अंग अंग की प्रतिमान देते थे, अंग का पर्याय देते थे। वो लाड़ कहाँ से लाए? अब आप पैसे से वो लाड़ खरीद रहे हैं, तो वो नहीं होगा। पैसे से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से सच्चाई और ट्रस्ट नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से यू कैन बाय ओनली सर्विस, बट यू कैन नॉट बाय इमोशन। तो really really noble thoughts, noble work, and words of wisdom. And I think you are really truly an evolved soul, and a lot of us need to learn a lot from you. And that's the right way of living your life. And I think I personally also call all these antibodies: love, affection, emotion, and being with your close people. That's all our antibodies. We don't really need any oxygen if we have people who love us, who care for us, and whom we love and care also. जैसे आपने बोला जिगर का टुकड़ा हम बोलते थे अपने बच्चों को, चांद बोलते थे, and all this, कि so I think that really makes a lot of sense. And इस पे कमेंट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट अगर मैंने सबके कमेंट्स पढ़ने शुरू कर दिए और आपने उनको रिप्लाई करना शुरू करा तो इट विल टेक अस सम डेज.
So I would like to ask you that we've heard that you're coming up with your own academy, online Yeah. and offline. So what is it called and how it will benefit worldwide? जो आपका academy आप start करना जी चाह रहे जी। हैं, तो जो उसके हमारा एकेडमी शुरू होने वाला है उसका नाम है कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी KKALA कला। तो कला एकेडमी बनेगी, और जिसको हम फिजिकल फॉर्म में जो बनाएंगे यानी ऑफलाइन जो होगा बिल्डिंग के अंदर, उसका नाम हम कला धाम रखेंगे। ताकि मनुष्य, देखिए धाम कब जाते हैं हम, जब हमें लगे कि हाँ यार यहाँ धाम हमने कर लिए हैं तो जिंदगी हमारी सफल है और हम सही पाथ पे हैं। तो कला धाम होगा, और kala.com या .in जो भी हमारा ऑनलाइन। अब मैं कला की विशेषता बताता हूँ, यानी कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स की विशेषता क्या हो। पहले से बहुत हैं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन चलते तो हैं पैशन के साथ, अपने स्लोगन के साथ, अपने टैग लाइंस के साथ, अपनी ईथोस के साथ, लेकिन बाद में वो घूम जाते हैं, बदल जाते हैं, गुम जाते हैं किसी कमर्शियल रेस में। और कमर्शियल रेस में जाने के लिए ये होता है, नहीं फला इंस्टीट्यूशन इज ओनली डूइंग दिस कोर्स, सो लेट्स डू दैट, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन दिस डेज। तो हमारे हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बिजनेस डेवलपर होते हैं, वो हमें रैट रेस में डाल देते हैं। जो हमारे अंदर का स्वयं का जुनून था, हमारे अंदर की स्वयं की जो एक अलगपन था, डिफरेंट एनर्जी जो थी, उसको कहीं ना कहीं मिटा देते हैं। वो भीड़ के हिस्से में हम आ जाते हैं। मैं क्योंकि थोड़ा खपती हूँ, थोड़ा जिद्दी हूँ, थोड़ा पागल हूँ, तो मेरी अपनी लाइफ के यहाँ पर बहुत सारे एथोस जुड़ेंगे कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स में। मैं सबसे पहले तो भाषा बिगड़ गई है लोगों की, अब हिंदी भी ठीक से बोलते नहीं हैं लोग, हिंदी को इंग्लिश बना दिया है। अच्छा, जो हिंदी भी ठीक से बोलते तो जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, वो इंग्लिश भी बेकार करते हैं, इंग्लिश भी गलत बोलते हैं। अच्छा, जब आप हर भाषा को इम्प्योर से बोलेंगे, मिक्स कर करके बोलेंगे, तो कुल मिला के आपकी अपनी पहचान फिर खत्म हो जाती है। हमारी एकेडमी की विशेषता होगी, हम भाषा पहले सुधारेंगे। इफ समवन इज ट्राइंग टू लर्न म्यूजिक, हम उसकी पहले भाषा सुधारेंगे, लिरिक्स उसको सिखाएंगे, प्रोनाउंसिएट करना सिखाएंगे, और ये बाकायदे बहुत ही समर्पण और शिद्दत और जुनून के साथ होगा। यदि 1 साल का कोर्स भी होगा उसमें, तो 1 साल में भी यू विल फील लाइक एजुकेटेड, एंड you will feel like elevated, you will feel like enlightened, you will feel like empowering की तरफ हम जा रहे हैं। ये नहीं कि 1 साल हमने पैर छुए गुरुजी के और बस बहुत क्लासिकल, और ये नहीं। प्लीज डोंट टच फीट और एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग whatever you are not feeling, but improve whatever you can do inside you। and मैं हर आत्मा में एक बात देखता हूं, हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी माधवी कोर्सेज बनाए हैं। You can learn anything, anytime, there is no particular age to learn for anything। Very nice, wonderful। और हमारी एकेडमी की एक विशेषता भी है कि मैं ये बोलता हूं कि सभी को संगीत सीखना चाहिए पृथ्वी पर। भले आपका लेना देना कुछ ना हो संगीत से, लेकिन मनुष्य होने के लिए, इंसान होने के लिए, आपको अपना ख्याल रखने के लिए, एटलीस्ट यू शुड लव योरसेल्फ। यू डोंट you don't do anything else, you don't love anyone, you live with your stress, live with your anger, live with your own high, whatever kind of high you have, and live in your own space। Yet you have to learn music, because at least you have to love yourself, you have to take care of yourself। उसके लिए ये अकीदा सिखाता है, तरीका सिखाता है, और अखलाक सिखाता है, तहजीब सिखाता है हमारा संगीत, कि हम चले भी कैसे, बोले भी कैसे, खाएं भी कैसे। मतलब हर चीज की तमीज सीखने के लिए आपको संगीत सीखना चाहिए। जरूरी नहीं संगीत इसलिए सीखें कि आपको गाना है ना, सुनने के लिए भी संगीत सीखना चाहिए, अच्छा लिखने के लिए संगीत सीखना चाहिए। मैं आपको विशेषताएं बताता हूँ माधवी। जो गौशाला है, आप वहां म्यूजिक बजाइए जरा, गाय ज्यादा दूध देगी और खुशी से देगी। देखिए, आप
कोई स्टूडेंट है, ढंग से पढ़ रहा है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, अच्छा म्यूजिक बजाइए उसके निकट, आप थोड़ा क्लासिकल या कोई सेंसिबल म्यूजिक बजाइए, कुछ कबीर की छंद बजाइए, वाणी बजाइए, या शब्द बजाइए गुरु नानक देव के, आप उसकी में और पढ़ाई में असर देखना। जबकि आप ये एब्सेंट माइंडेडली कर रहे हैं, आप ये इंटेंशनली उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप इस ऐसे माहौल वालों को देखिए, आप उनकी जिंदगी का असर अलग होता है। तो यदि आप स्वयं से, मान लीजिए गंगा के पास जाकर आप इतने अच्छे हो गए, यदि आप स्वयं की गंगा बहा दें तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो संगीत जो सीखना है वो स्वयं की गंगा बहाना है, उस पे बांध लगा के मत रखिए। हर के अंदर शिव है, हर के अंदर गंगा, हर के अंदर भागीरथी आ सकती है, बस यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन। Beautiful, very inspiring, and I'm sure a lot of people are here today who would love to learn singing after listening to you. We knew it is therapeutic, listening is therapeutic, but singing, I don't know, फिर वो उससे भी कुछ ज्यादा करेगा शायद, उससे भी ज्यादा कुछ काम करेगा लर्न करना। And Jyoti Gupta wants to know कि कलाधाम कैसे ज्वाइन कर सकती हैं वो? How can she join? जी, हमारा नाम भर याद रखिए जिंदगी में, इतनी ज्वाइन खुद आपकी तरफ आएगी आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन खुद आएगी कि मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ऐसे आया करेंगे। सी, मैं क्या बोलता हूं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। मनुष्य के पास नॉलेज बहुत आ गई है पर एजुकेट नहीं हो पा रहे फिर भी। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है लेकिन पता नहीं चल रहा, हम इतने मेस्मराइज होकर कंफ्यूज हो रहे हैं, उफ उफ। तो हम इसकी बजाय सिर्फ देखिए KailashKher.com, ये तो हुआ एक हमारा वेबसाइट, कैलाश खेर ट्विटर, ये हुआ एक सोशल पेज, कैलाश खेर इंस्टाग्राम, ये हुआ दूसरा, कैलाश खेर फेसबुक। मतलब आपने करेक्ट स्पेलिंग से हमारा नाम भर लिख लिया तो आपको परमात्मा, टेक्नोलॉजी रूपी परमात्मा जो है वो अपने आप करेक्ट जगह लेके आएगी आपको। कैलाश खेर फाउंडेशन और कला, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स। देखिए वही बात है कि जिन जो थोड़ा हैफेजर्ड में जी रहे हैं उनके पास भी कोई चीज रहेगी वस्तु, वो तो भी चिल्लाते रहेंगे, वेयर इज माय स्पैक्स मैन, कम ऑन, आई जस्ट हैप्ड इट हियर, नो वेयर इज इट। अरे भाई ये तेरे सर पे है इतना रेस्टलेस हो रहा है, इसकी वजह से तुझे मिल नहीं रहा। बाकी देख, ध्यान से देखेगा तो तेरे पास ये ध्यानी तो well said and well expressed. नाम भर याद रख कोई रखे तो हम तो बहुत ही, देखिए जब मैं शुरू में, जैसा मैंने बताया कि शुरू में जब हम यहाँ आए तो लोग रीचेबल, अप्रोचेबल ये होना ऐसा ख्वाब लगता था, किसी बड़े आदमी को देखना मिलना, यार मुंबई में ही है हम, मुंबई में ही सुना है ये लोग रहते हैं यार, कभी दिख जाए, कभी ये, कभी नहीं। मैंने उसी का पहले बंधन तोड़ा, सबसे पहले मैं रीचेबल रहना चाहता हूँ, अप्रोचेबल रहना चाहता हूँ। इसी के लिए देखिए ना 15 साल में हमारे इतने प्रकल्प चल रहे हैं, ये पेजेस हमारे सब लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं। मैं तो बहुत कम पोस्ट करता हूं, जबकि फिर भी उसके बाद भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत कम फिल्मों के गाने गाते हैं। उनका कम में ये हालत है, अब अगर हो जाऊंगा तो पागल है हो जाऊंगा पगलो। So Dipali is saying that music nourishes our soul and she starts her day listening to your songs in the morning. And काफी कुछ लिखा है उन्होंने, वो पूरा तो मेरे को नहीं पढ़ा जा रहा, सबके कमेंट्स बहुत सारे हैं क्योंकि, और कई लोग आपको कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। किसी मेरी एक फ्रेंड का टेम्पल ग्रुप है जहाँ पे वो बहुत पुराने पुराने एंशियंट टेम्पल्स का ग्रुप है उनका, तो वो आपको उसमें भी इनवाइट करना चाहेंगे। और किसी ने लिखा है कि उन्होंने आपको अपनी बुक में कवर किया है, ऋतु ने, ऋतु भगत, एंड शी इज सेइंग कि उसमें आपने लिखा है कि हिंदी लैंग्वेज से हमारा सबसे अच्छा इमोशन एक्सप्रेस होता है। उस बुक में आपने उनको शायद कमेंट लिखा होगा कि हिंदी मदर टंग। You've answered my questions without my questions being asked. Thank you, Kailash ji. Yeah, Ritu is writing that. रितु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में हिंदी क्यों ज्यादा नरिश कर सकती है पृथ्वी को। हिंदी के पास लगभग 90,000 शब्द हैं, 90,000 वोकेबुलरी, शब्दकोश। इंग्लिश के पास कुल 36,000 हैं, यानी ऑलमोस्ट 1/3। अच्छा, उनका 36,000 से पूरी दुनिया में उन्होंने राज भी कर लिया, अपना बाजारीकरण यानी कंज्यूमरिज्म भी, मार्केटिंग भी, उनकी ब्रांडिंग भी,
इंग्लिश इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, हिंदी इज अ इमोशनल लैंग्वेज। अच्छा, भारत में टेक्निकल बहुत ज्यादा होने लगे लोग, देखिए इसकी वजह से शरीरों के स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ा तो अब बहुत सारी व्याधियां शारीरिक आ गई। इसीलिए भारत में हिंदी क्योंकि बड़ी भाषा है, इसका अच्छा प्रयोग करना चाहिए, झूठे फैशन में नहीं आना चाहिए। इंग्लिश का प्रयोग करिए जहां आपको टेक्निकल अग्रीमेंट बनाने हो, वो इंग्लिश में बनाइए, क्योंकि वो टेक्निकल है। तो वहां आप टेक्निकल टेक्निकल खेलने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करिए। दिल जहां हो, हृदय जहां हो, प्रेम जहां हो, लाड़ जहां हो, वात्सल्य जहां हो, वहां आप हिंदी का प्रयोग करिए। इंग्लिश में तो हमारे यहाँ माँ को मतलब सासू को बोलते हैं मदर इन लॉ, कानून में है ब्रदर इन लॉ, ये ब्रदर जो है हमारे एक कानून में है। वहां लॉ जोड़ दिया। हमारे यहाँ लॉ वो कुछ नहीं, यहाँ मौसी है, चाचा है, ताया है, फूफा है, और ये सुनने में बोलने में कितने प्यारे लगते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेरी वेल सेड। आंटी में निपटा रखा है सबको। Yeah, true, well said actually, and really makes sense. And Kailash ji, we've heard some great work done by your trust foundation, Kailash Kher Foundation. तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा और ज्यादा लोगों को बता सकें, that will be very nice. जी, मैंने ये दरअसल 4-5 साल पहले हमारी ट्रस्ट बनाई थी, मैंने फाउंडेशन बनाई थी, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि इस दुनिया में यदि आप सिर्फ अपने तक सीमित रहेंगे तो अपने तक तो बहुत लोग सीमित रह के गए। अपने सब लोगों ने पैसा कमाया, दौलत कमाई, नाम कमाया, बाद में उनकी जो हायर होते हैं उन पर चला जाता है वो उनके बाद। तो इस तरह से तो सब लोग जीते आए ही हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो इस दुनिया में मैंने उपजाया है, जो कमाया है, वो क्यों ना मैं इस दुनिया को बांटना शुरू करूं, क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी बहुत लोग मुश्किलों से गुजर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ हमारे पास अभी लग्जरी हैं, लेकिन बहुत सारी तबके हैं जिनके पास कंफर्ट भी नहीं। अच्छा, मैं देखता हूं कुछ लोगों ने जैसे कुत्ते पाल लिए, सपोज जब वो कुत्ते पाल लेते हैं तो मैं देखता हूं कि कुत्तों को भी जब एसी में रखना आप प्रारंभ कर देते हैं और थोड़े कंफर्ट में रखते हैं तो कुत्तों की जो बिहेवियर है वो मनुष्यों जैसे ही होने लगती है। तो अचानक नो टॉमी डोंट डू दिस, नो बार्किंग, नो बार्किंग, नो गो इनसाइड, तो बेचारा कुत्ता मनुष्यों जैसे ही बात कर रहा है, कहा मान रहा है हर चीज। यदि आप मनुष्यों को थोड़ा सा कंफर्ट भर दे दें तो उनका तो क्या स्किल बनाया भगवान ने। तो ये तो बहुत बड़ी सीख हमारे पास है, लेकिन ये रियलाइज करते हैं लोग, लेकिन कभी कभी तब रियलाइज करते हैं जब वो रियलाइज करने योग्य नहीं होते। उस वक्त उनकी खुद की रियलाइज अलग हो जाती है, उनके अंदर कुछ नहीं हुआ, फिर पता लगा 70 के बाद आपके हृदय में आया भी कुछ करने को, तो अब तो तेरा भाई तेरी लाइट ही निकाल दी बाबा ने, तेरे अंदर की मणि गायब है, अब तो तुझे हेल्प की जरूरत है, अब तू क्या हेल्प करे। ये है, जब आप कड़क हों, जब आप पीक पे हों, तब आप किसी के लिए कुछ करिए, तब लगता है कि हाँ ये दिल से कुछ कर रहा है। तो ये मैंने फाउंडेशन बनाई थी और इसका पर्पस, उद्देश्य ही ये था कि जो मेरे जैसे जीवन के बहुत अनकट डायमंड हैं भारत में, उनको यदि मैं 2-4 की लाइफ भी थोड़ा सा एम्पावर करूं, चैनलाइज करूं, उनके गाइडेंस का हिस्सा बनूं और उनके एजुकेशन का हिस्सा बनूं, यू नेवर नो किसी के अंदर क्या परमात्मा ने बना के भेजा है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो उदाहरण हुए हैं कि मतलब ऑर्फेनेज से कितने ब्यूरोक्रेट्स बने हैं पढ़ पढ़कर, ऑर्फेनेज से कितने लोग आगे आए हैं, साइंटिस्ट भी बने हैं कई लोग। तो इस तरह से ये मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई और अब पिछले 2 वर्ष से तो हम इतना ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कि पूरे भारत में कहीं भी किसी प्रकार की भी मदद पहुंचानी है तो हमारी ट्रस्ट पहुंचा रही है। मैंने जैसा बताया 30-40 लोगों को हम लोगों ने अभी इंडिविजुअल्स को हेल्प की मेडिकली। कुदरत का बात देखिए, जहां सच्ची निष्ठा से जब आप काम करते हो तो 80 साल के लोगों की भी हमने हेल्प की है, वो भी सब वापस घर आए हैं स्वस्थ होकर। किसी की अप्रिय घटना अभी तक मिली नहीं। 40 लोग भगवान ने नेकी यानी नेकी से किए हुए यज्ञ सफल होते हैं। ट्रू,
बिल्कुल, तो आई अब थिंक हम यूनिवर्स कंस्पायर हैं। करता है, वो यूनिवर्स भी कंस्पायर करता है वो चीज पूरी करने के लिए, जब आप श्रद्धा और मन से कुछ चीज को करते हैं तो वो बिल्कुल, 100% बिल्कुल। पूरी होती है, जब आप दिल में सच्चे चाहा तो मन से करते हैं, सच्चे मन से करने वाले काम काम नहीं रहते, वो इबादत हो जाते हैं। और नहीं। ये राइट, अब इसी इसी फहरिस्त में अब हम बहुत सारी जगहों में भोजन भिजवा रहे हैं, ड्राई राशन जिसको बोलते हैं, राशन किट और मेडिकल किट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मेडिकल किट, अपने हॉस्पिटल बेड्स। अभी हमने 200 बेड का इस्कॉन के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल यहाँ द्वारका दिल्ली में बनाया, जिसकी सफलता देखकर 2000 बेड का उसको अपग्रेड करने के लिए फिर हमने कैलाश खेर फाउंडेशन ने और हमने मिलकर एक वर्चुअल कॉन्सर्ट जैसा बनाया, जिसमें हमने लोगों से अपील कराई। उसमें हमारी इंडस्ट्री के कम से कम 30 लोग आए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से। और हमारे ही फ्रेटर्निटी के 12-13 लोग आए, हेमा जी आई, विवेक ओबेरॉय आए, शंकर महादेवन आए, सोनू निगम आए, शान आए, और सुनील ग्रोवर आए, मनोज मुंतशिर आए, बाहुबली का जो जिन्होंने डायलॉग और गाने लिखे हैं, राजू श्रीवास्तव आए, मिक्का आए, दलेर मेहंदी आए। तो ये इन सब ने हमारे अपील को एम्पलीफाई किया, दिल से आए। कुछ किसी ने, पब्लिक ने गाने को भी बोला तो बड़े दिल से गाया लोगों ने। तो इस तरह से जब एम्पलीफाई किया इस अच्छी पुकार को, तो इस्कॉन के लिए मांग रहे थे हम वो लोग उस वक्त डोनेशन, तो इस्कॉन को डोनेशन भी आया और कैलाश खेर फाउंडेशन उनकी बराबर की पार्टनर थी। अब कैलाश खेर फाउंडेशन एक यूके की कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, जो हमारे लिए एनआरआई से, पूरे वर्ल्ड से और संस्थाओं से डोनेशन इकट्ठा कराएंगे, क्योंकि हमारा क्या खर्चा ज्यादा है और पूर्ति कम। हमारे पास आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, क्योंकि हम पागल हैं। तो मेरा पूत बंजारा लेवे करज और बेचे उधारा। तो अब हमारे पास है कम, लेकिन हमारे पास लिस्ट जो आई हुई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसी ज्यादा। तो इसके लिए हमने, हमारे एक परिचित थे, मलेशिया में रहते हैं, उनका यूके में भी कारोबार है, बड़ा है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही अमीर टाइप के उनकी कॉर्पोरेट्स हाउस हैं। तो मैंने जब उनसे किया तो उनको हंसी आई। उन्होंने बोला, कैलाश जी जो आप कर रहे हो ये तो बहुत ज्यादा, इसके लिए तो एनर्जी लगेगी, इसके लिए तो बहुत, तो हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं और इसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो अब देखिए, वो लोग भी जुड़ने की इच्छा तो जाहिर की है, लेकिन भारत से जितने भी हमारे परिचित हैं, अभी थोड़ा थोड़ा वो भी डोनेट कर रहे हैं कैलाश खेर फाउंडेशन में। और जितना भी होता रहेगा, तो हम लोगों की अभी प्लानिंग थोड़ी बड़ी है, वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा। हमारे जो लोग हमारे ट्विटर पेज पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये कर रहे हैं, कुछ इतना बड़ा धमाका करने वाले हैं जो पूरी पृथ्वी पर किसी गायक ने तो शायद आज तक नहीं किया। हम वैसा करने वाले हैं पूरे भारत में, हेल्थ सेक्टर में कुछ अनोखा करने वाले हैं, बहुत बड़ा, किसी सरकार ने भी किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, वी रियली नीड पीपल लाइक यू, एंड आई एम श्योर आपके इतने नोबल इनिशिएटिव में बहुत सारे लोग और भी जुड़ेंगे, क्योंकि इस तरह का कुछ करना है तो बहुत लोगों की सहायता चाहिए होगी इसमें, और लोगों को आना चाहिए, बिकॉज आखिर इंसान ही इंसान के काम आएगा, और एक बार अगर इंसान इंसान के साथ जुड़ जाता है तो वो कमाल कर सकता है फॉर श्योर। एंड बहुत सारे कमेंट्स फिर आ रहे हैं कि लव द पैशन एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में जो पैशन है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। एंड ऑल्सो दे रियली लाइकिंग योर स्टोरी अबाउट योर लाइफ जर्नी, विच इज सो प्रैक्टिकली आपने सब कुछ बताया है, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ आर्टिफिशियल उसके कि सब अच्छी अच्छी बातें बताना, बट अपनी हार्ड स्ट्रगल, हार्ड जर्नी भी बताई है, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, बहुत सारे आपके फैंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एंड श्रीलंका में कौन से स्टूडेंट्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको? आई थिंक वो आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया है। हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स, या तो .com या .in, ये दोनों होंगे ऑनलाइन में। और हमारा जो गेटवे होगा और जो हमारा तरीका होगा, हमारी जो वेबसाइट है, वो बड़ी स्टाइलाइज है और बहुत तगड़े उसका है, तो उसकी स्ट्रेंथ, बैंडविड्थ तगड़ी है। तो पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं,
हम एक नहीं खोलने वाले, जो भी, यहां तक कि कला के लिए भी हम एक नहीं खोलेंगे, पूरे वर्ल्ड में इसकी शाखाएं होंगी। और कैलाश खेर फाउंडेशन के द्वारा भी जब हम जो हम करेंगे वो भी पूरे इंडिया में, मतलब हम गांवों तक, टायर 2 टायर 3 इन सब तक जाएंगे, जहां रोड, जहां इलेक्ट्रिसिटी, जहां इंटरनेट, ये 3 चीजें हैं, हम वहां तक जाएंगे। अब हमें अब भारत की हेल्थ सुधारनी है, ये मेरा पागलपन है। अब भारत को मैं निवेदन करूंगा कि ईट प्योर लिव प्योर। भारतवासियों, क्यों पागल हो रहे हो, किस लिए जोड़ रहे हो, किस लिए नकली नकली खेल रहे हो, क्यों अपना शरीर बिगाड़ रहे हो? प्लीज look after yourself well. You are the power God has created to, enlighten the universe. Then why you are being waste actually? तो वही एक अवेयरनेस की ही बात है बस। अगर आप अवेयर हो गए तो पूरी दुनिया अवेयर हो जाएगी। बी द चेंज का यहाँ पर फॉर्मूला फिट होगा। तो हम लोग कुछ इतने बड़े शाहकार लेकर आने वाले हैं ईश्वर की कृपा से। मेरा दाता बस, मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा, ये हमारे ऊपर इतनी कृपा करिए कि जो हमारा मन है, जो हमारी दृष्टि है, बस उसमें ये एग्जीक्यूशन के लिए सब चीजें हो जाएं। क्योंकि धीरे धीरे हमको बड़े रास्ते दाता दिखा रहे हैं कि हाँ, ये तो होती हुई चीजें दिख रही हैं। क्योंकि अब मनुष्यों को ये एहसास हो गया है माधवी कि देखिए, ज्यादा दौलत भी किसी करत की नहीं है। ज्यादा दौलत भी इंसान को फेंक के जानी पड़ती है, वो बोझ हो जाता है शरीर के ऊपर, तो उसका भी कोई लाभ नहीं। देखिए, कहते हैं परमात्मा के मेरे प्रभु इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे जितने आश्रित मेरे इर्द गिर्द, मेरे साधु, मेरे सन्यासी, वो भी भूखे ना जाए। ताकि अगर 2 साल भी बैठ के, मैं आपको एक बात बताता हूं हंसी की, मैं वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान को भी जानता हूं और भारत के सबसे अमीर इंसान को भी जानता हूं। मैंने दोनों को कभी सुकून में नहीं देखा। कभी भी ऐसा नहीं कि भाई कभी किसी आइलैंड पे, अपने बीच पे या किसी आइलैंड पे खरीद के कहीं साइड में ऐसे लेटे हों, धूप सेक रहे हों, कभी इतने सुकून में मैंने दोनों को नहीं देखा। मैं हंसता हूं तो यार, जब इतने अमीर भी इतने बेचैन हैं, तो ये तो बेचैनी कभी खत्म ही नहीं होगी, ये तो इनफाइनाइट इन्होंने बेचैनी ले रखी है। तो इंस्टेड ऑफ, वो तो पैंडेमिक में भी प्रूव हो गया दैट मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। देखिए जी, तो इसलिए हम सीमा में रहें, हम सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को दें। जब हम खुद को देंगे तो जो कहते हैं ना कि आप वेयर योर ओन मास्क फर्स्ट बिफोर असिस्टिंग अदर्स, कितना अच्छा उन्होंने सूत्र बनाया हुआ अंग्रेजी में। तो देखिए, आप स्वस्थ होंगे तो आप 4 को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आप ही डगमगाए हैं, आप ही स्ट्रेस में हैं, तो देखिए हर बीमारी का जो रोग जड़ है वो मन है। मन, आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर उदास होगा तो आपके अंदर 4 रोग तो वैसे आ जाएंगे। ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है, ब्लड प्रेशर, ये किस चीज की खा रहे हो? ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं। अरे भाई, अच्छे भले इंसान होकर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हो। ब्लड प्रेशर के तो लिए बस हवा खानी है आपको। सुबह की हवा खाइए, आनंद में जिए, हंसी की हवा खाइए, हंसिए हंसाइए, तो ये तो इन चीजों से ठीक होने वाली चीज है। तो अब अमीरों के यहाँ भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेल्दी पीपल, so sometimes I happen to visit them for dinner, for lunch, so those type of experiences teach me so much. What, जब टेबल पे कोई बड़े आते हैं तो पहले उनका एक बड़ा सा बॉक्स आता है टेबल पे, तो ये क्या है भाई, अभी तो टेबल लग ही रहा है, ये बड़ा सा डब्बा क्या है? जी बहुत सारे मेडिसिन है। तो ये क्यों, मतलब भोजन से ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं। तो मैं उनको बताता हूँ, भाई क्यों ऐसा, क्यों, ये क्या तरक्की की आपने? ये इसलिए कमाया था कि इतना सारा केमिकल रोज ठूंसना पड़े शरीर में। तुम इनका जरा लाइफस्टाइल चेंज कर दो, जस्ट मेक इट रिवर्स करेंगे तो पता लगा आप ना दवाई खाएंगे ना खिलाएंगे। बिकॉज ये तो पूरी साजिशों के साथ चल रहा है, हमारे सेहतों से खेलना, हमारे हेल्थ से खेलना। पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड में, पूरे में अभी सबसे बड़ा बाजारवाद यही है, फार्मेसी। पहले हथियारवाद था, अब बाजारवाद फार्मेसी है। हर घर में दवाइयों का डब्बा मिलेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, 10 साल पहले तक दवाइयां डब्बों में आई थी नहीं थी कि हर घर में
डब्बे पाए जाएं, अब हर घर में है अनफॉर्चुनेटली। तो पहला शेर का सपना है कि संगीत से भी हील करना है, और संगीत के साथ साथ जो हमारे विचार हमारे अंदर के हैं, हे मेरे दाता, इफ आई कैन डू समथिंग आई मस्ट डू, एंड इफ आई वांट टू डू समथिंग आई मस्ट डू इट नाउ, इट इज नाउ और नेवर। वेरी वेरी मोटिवेशनल, एंड बहुत सारे लोग आज 100% बहुत मोटिवेट होके जाएंगे, एनर्जाइज होके जाएंगे। आई एम ऑलरेडी वेरी मच मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय यू, लॉट ऑफ फैंस हियर, so they are really appreciating. And yeah, Kailash, you are the voice of almost all the important yojanas and schemes of government. To name a few: Bharat Ke Veer, Ujjwal Bharat, Swachh Bharat, Beti Bachao Beti Padhao, BHMI, digital payments, Nari Shakti. Can you please elaborate on these? जितने भी देखिए, स्वच्छ भारत जब कैंपेन चला था तो आई एम वन ऑफ द नवरत्न ऑफ प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने हमें नॉमिनेट किया हुआ है अपने 9 रत्नों में। और इसके लिए ये था कि 2014 से जब ये नई सरकार आई और इनके बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई जो काफी भारत में चेंज लेकर आई, तो उनमें से एक जो पायनियर या फ्लैगशिप योजना थी वो ये थी स्कीम स्वच्छ भारत की, लेट्स क्लीन आवर soil, let's clean our nation. Clean Delhi also. Green Delhi, clean Delhi. जी, हर सिटी का फिर अपना अपना टैगलाइन आए थे। तो तब हमको ये एंथम गाने को मिला, और आज भगवान की दया से ये है कि बहुत सारे सिटीज में बहुत सारे म्युनिसिपल जो वैन्स होते हैं जो लेके जाती हैं को, तो उसमें ये बजता भी है। और फिर हमको एम्बेसडर बनाया स्वच्छ भारत मिशन का, और वो जो 9 रत्नों में से एक बनाया है। फिर हमसे स्किल इंडिया का हमने गाया। हम क्या हैं, जो भी गाते हैं भारत की, क्योंकि पहले भी हम गाते रहे हैं पहली सरकारों के लिए, लेकिन अब क्योंकि स्कीम्स थोड़ी और पावरफुल आई हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने गाया। हम जो गाते हैं वो बिलोंगिंग के साथ गाते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि गा के फॉर्मेलिटी दिखा के गाया ना, हमारे अंदर का एक जुनून गाता है और उसका प्रभाव आता है फिर। तो इसलिए ज्यादा could you please hum few lines for us? जी, मैं आपको भारत के वीर जो हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए गाया है, बहुत ही उसकी तारीफ आती है पूरी दुनिया में, हमारे YouTube चैनल पर भी है वो। भारत के वीरों सैनिकों हो इस धरती के सपूतों, तुमको नमन तुमको नमन तुमको नमन तुमको नमन, तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है, भारत के वीरों सैनिकों। Beautiful, wonderful. And I think अभी के टाइम पे तो बोल रहे हैं कि doctors are like the soldiers for our country right now. So this song goes to even them. Salute to the doctors at this time. They are doing the role of soldiers. उनको भी माधवी ने भारत के वीर ही कहा है। They are also warriors. उनको भी हमने हमारे रक्षक बोला है, अवधूत बोला है, भगवान के भेजे हुए दूत बोला है, तो उनको भी हमने यही कॉम्प्लीमेंट दिया है। Yeah, some one or two general questions before we close. That how different it is composing music for your own songs as against singing for other composers, because आप compose खुद भी करते हैं और दूसरे composers के लिए भी गाते हैं, तो क्या difference है उसमें? हाँ, बेसिकली तो हम खुद अपनी एल्बम बनाना, खुद लिखना, खुद कंपोज करना, इसी के लिए यहाँ आए थे। लेकिन कुदरतन बात ये होती है कि जब आप के काम को लोग पसंद करने लगते हैं तो फिर आपको फिल्मों में भी गवाने लगे, फिर जिंगल्स भी गवाने लगे, सीरियल्स में भी गवाने लगे, एल्बमों में भी, दूसरों की एल्बमों में भी गवाने लगे। तो इस तरह से फिर होराइजन आपका एक्सपेंड होने लगता है। और इस तरह से हुआ कि हम जो स्वयं लिखते हैं उसकी एक अलग तासीर होती है, उसका एक अलग तसव्वुर होता है, उसका ख्याल अलग होता है, उसकी समझिए तबीयत अलग होती है, मिजाज अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम एक तो शब्दों का
बहुत ही यूनिक शब्द हम लिखते हैं, ठीक है, Okay. जो धीरे धीरे मान लीजिए हैं भी नहीं अब प्रयोग में। जैसे हमने एक लिखा था, ओ रंगीले हाँ रंगीले, ओक से तो पीले जरा, ओक से तो पीले। तो अभी बहुत सारे लोगों को ओक नहीं पता, वो सोचेंगे ये ऑकवर्ड का कुछ बर्तन बनाया होगा उससे बोल रहे हैं ओक से तो पीले। जबकि जब आप प्याऊ पे जब पानी पीते हैं, तो जब आप ऐसे पानी पीते हैं, इसको ओक कहते हैं हम। ओके, ग्रेट, लवली। तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए गाते हैं, दूसरी कॉम्पोजिशंस दूसरों का ये, तो उनका फिर एक अलग अंदाज होता है, उनका अलग रूट होता है, तो और सुन के भी मजा आता है कि अरे वाह इनका भी गाया, और उनको भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये एक ऐसी विधा है भगवान की संगीत कि उसमें उनको भी मजा आता है, यानी कुएं को भी पानी पिलाकर मजा आया और प्यासे को भी पीकर मजा आया। ये ऐसा संबंध होता है जब हम दूसरों की पोजीशंस गाते हैं। Wonderful, very nice. And some songs have great music but meaningless lyrics and style. Go to big hits, and how do they become really big hits? How important are lyrics in a song? जी, whenever you have a good product and bad market, so you will see the impact. When you have a bad product and a good market, तो definitely that also shows the impact. हमारे यहाँ कभी कभी कैसा हो जाता है कि मान लीजिए प्रोडक्ट में दम नहीं है लेकिन मार्केटिंग में बहुत दम है, तो उसके जो गिमिक्स होते हैं वो असर कर जाते हैं। बिकॉज ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है, मनुष्य का जो ब्रेन होता है, मनुष्य की जो वेव्स होती हैं ब्रेन्स की, तो उसकी उनको थोड़ा सेंसेशनल चीजें चाहिए होती हैं, उनको एक्साइटमेंट चाहिए होता है, उनको थोड़ा जल्दी से स्टिमुलेशन चाहिए होता है कि कोई चीज उनको हिला दे, कोई चीज उनको मेस्मराइज करे जल्दी से, तो वो गिमिक वहाँ काम कर जाते हैं। इसलिए कंटेंट चाहे उतना वजनदार ना भी हो, कोई उतना स्ट्रेंथ वाला ना भी हो, लेकिन हल्की बातें भी भारी मार्केटिंग में चली जाएं तो वाह एवरीवन लव्स दिस सो आई एम लविंग इट, हमको खुद तू क्यों नाच रहा है, क्या है इस गाने में, इसमें तो ना बोल है और ना कोई साउंड भी ऐसा जैसे ढकचक 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 ढकचक, लेकिन पगलाए है। अच्छा पगलाए क्यों है, क्योंकि एक तो खेचे हैं, अच्छा उसके बाद आधा काम तो किया हुआ है, अमृत जो पिया हुआ है, उसके बाद जो है बाकी, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। भारत में अभी भी ज्यादातर इतने इवॉल्व हो पाए लोग कि क्योंकि ये नाच रहे हैं and she is really dancing and enjoying herself, so maybe I also join. अरे भाई तू अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल कर, तू समझ तो ले क्या है ये म्यूजिक। तो अलग अलग आत्मा होती हैं, लेकिन क्या होता है इन्फेक्शियस रेज होती हैं ये ब्रेन की, कि जो भी कोई एक कर रहा है तो हमें भी वैसा करना है फिर। Right. And I think, as a luxury consultant, if you ask me how much media plays a role, absolutely. It is how you hype it, how you portray it, how you project something that really makes a lot of difference. And I'm sure that way it works for lyrics as well. And I would like to ask you, Kailash ji, that being one of the youngest musicians to be the recipient of Padma Shri, how does it feel? It feels beautiful. It feels privileged and honored. I am actually super elated because of this. I am from Delhi, or in my formative years I had gone, as I told you, I had gone through tough route, really tough. So at that time I could not even imagine that Delhi, my hometown, will ever accept me like its own son, or Delhi would definitely give me that respect what I deserve or something. But then God gives me surprises in a miracle way, और यही हुआ कि अचानक इज्जत भी मिली, तो इतनी बड़ी इज्जत मिली जिसको पूरे भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है, वो मिली। तो और वो भी दिल्ली में, वो भी हमारे जो प्रेसिडेंट उस वक्त के थे प्रणब दा, उनके द्वारा। तो बहुत एक मिरेकल हुए हैं बहुत।
तो परमात्मा तो बदलते रहते हैं जी। Great achievement, and definitely you make our country proud, and we are all proud of you. We are huge fans of you. There's so many people who really admire you and adore you. And last, not the least, I would like to ask you that Kailash, this band has performed more than 1,200 plus concerts worldwide till now. So, how the audience in various countries have reacted to your songs, especially non-Hindi speaking worldwide? हाँ जी, worldwide actually, our music fascinates people who love music, irrespective of language, irrespective of sounds, because our sound is very much international, and the music in itself comes from your soul, and language can be only of lyrics, but the feelings and emotions is beyond language. So that is why our music come across global culture, global audience, and all the people from every country, they have actually collaborated with us, they have danced with us in large amount of numbers also, be it in Australia, New Zealand, be it in Singapore, be it in US, Europe, anywhere in the world actually. So Kailasa has been kind of, as though we belong to everywhere. So the language can only happen with the lyrics when we sing lyrics, but we generally sing music more than lyrics. So in fact कितने लोगों का तो ऐसा भी हमको फीडबैक मिला है माधवी, जो हमारे कंट्री के नहीं है, हमारे नेशन के नहीं, हमारी लैंग्वेज के नहीं है, उन लोगों ने बोला दैट ओ वाओ, ऑल्दो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग बट वी कैन अंडरस्टैंड द फील बिहाइंड दिस कंपोजिशन. तो पर्पस, क्योंकि लिरिक्स तो हमारे लैंग्वेज जानने वाले भी नहीं समझ पाते कभी कभी. हमारा फ्रेंड जो परेश कामत है, परेश कामत बहुत दिनों तक इश्क, ये प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी को सोचता था कि प्रीत की लात, इन पंजाबी दे कॉल लत, कि लगा प्रीत की लात मुझे किक ऑफ लव ऐसी लग गई. अच्छा, तब मैंने इसको बताया इनका लत मीन्स एडिक्शन. Beautiful. Yeah, you enjoy the music actually, for sure. Everybody loves music, and music is a therapy, and music is therapeutic. Last question I would like to ask you that I'm sure आपने जितने भी गाने गाए हैं वो सब आपको बहुत आपके दिल के करीब होंगे और पसंद होंगे. But one of the favorite songs that is closest to your heart, या आपका कोई fan reaction जो आपको याद है, किसी fan ने आपसे कुछ उस टाइम पे रिएक्ट करा हो, बहुत ही जबरदस्त fan है आपके कोई? और जनरली बोलते हैं कि म्यूजिक जब तक आपको प्यार में चोट नहीं लगती तो आपके दिल से आवाज नहीं आती, तो उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मुझे बहुत ही लगी है शायद, तभी वो दिल से ही आती है मेरी आवाज तो. और बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट की है, श्रिया भी बोल रही हैं तेरी दीवानी के लिए, और अभी अर्जुन ने लिखा था जय जयकारा. तो ये तेरी दीवानी जो गाना है, क्योंकि हमारी कैलासा एल्बम का पहला गाना है हमारा, तो जिससे हमारा एक्चुअली सच में पहचान हुई कैलाश खेर की. और ये बना भी दिल्ली में ही था, एक कॉन्सर्ट के दरमियान ही आया था. ये प्रगति मैदान में हम एक लाइव इन कॉन्सर्ट कर रहे थे, पहली कॉन्सर्ट थी, उसमें तेरी दीवानी मैंने इम्प्रोम्प्टू एक्सटेम्पोर वहीं पे बना रहा था, गा रहा था. तो मैं समझ लो या तो गिरा या संभला, लेकिन फिर परमात्मा ने संभाला. और उसके बाद ये गाने की इतनी तारीफ आई तो हमने फिर ये इसमें रखा हमारे एल्बम में, पहला गाना पहली एल्बम का. तो अब मैं ये गाना इसलिए क्यों आज के संदर्भ में एकदम अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जितने भी भारत में फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स जो लगे हुए हैं पूरी भारत को बचाने के लिए, चाहे डॉक्टर्स हों, सिक्योरिटी के लोग हों, हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे जितने भी पेट्रोल पंप पे रात दिन खड़े हुए हैं कि नहीं, कितने भी लॉकडाउन हो लेकिन गाड़ियां चलनी चाहिए, डिलीवरी बॉयज, Amazon एंड ऑल ऑनलाइन, तो उन सबको मैं, उनके जुनून को मैं ये गाना डेडिकेट करता हूँ. बड़ा इसकी रेलेवेंस देखिए अभी भी कितनी है. इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क
जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई हो जी, हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। और अर्जुन की भी एक रिक्वेस्ट है, तो मैं जी, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदुवस्तुनि। Awesome, wonderful. It's really a pleasure and honor to have you on the show, Kailashi, and I wish you all the best. I mean, you've already done so much. There's a long way to go, and I'm sure आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आप बहुत कुछ दुनिया को देने वाले हैं internationally, not only in India. So it's been a real pleasure, very inspiring, such a noble soul. Lovely to host you on the show. Thank you so much. Madhvi, I would also like to thank all the audience, all the followers of your page, and all the people who are listening now and who will listen to us baad mein bhi when we put these links on all of our pages. And जितने लोगों को छोटी मोटी बातों ने इंस्पायर किया हो, if they feel like contributing to noble causes we are attached to Kailash Kher Foundation ke through, so people are most welcome for that too. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaskar.